ओके, चलो चलो। अगर कोई टॉपिक तो अगर पता है ना। किसी ने अच्छा पढ़ा हुआ है तो भले वो कर ले। डॉक्टर पलवशा की मर्जी है, अगर वो कहेंगी तो मैं फिर शुरू कर दूंगी। चलो स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह। Gravida 2, para 1 plus 0, previous one, cesarean section with the mitral stenosis is on the list for the elective C-section. And mitral valve area, discuss the mode of the anesthesia for this patient. Previous one, मैडम इसकी डिटेल्स भी पढूं? बस यही है, ये पहला सिनेरियो है। आप इसमें टाइप ऑफ एनेस्थीसिया बताएं। इट्स जस्ट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया बताना है चारों स्टेशंस में, सिनेरियोज में। मतलब इस Okay, with a mitral stenosis and is on elective C-section. Previous ones with madam, this में इसमें type of anesthesia, severity of the mitral stenosis not mentioned. Should I ask this? हाँ। Okay. मैडम उसका mitral valve area क्या है और mitral valve stenosis की what is the severity of the mitral valve stenosis and whether the patient is stable with her valve function? Yes, she is stable and it's moderate mitral valve stenosis. Okay, then we can give the epidural anesthesia for this patient, and is this patient is on the low molecular weight heparin? जस्ट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया बताओ चंदा, बस यही बताना है। Epidural should be given in this patient. Epidural is preferred. ओके। एंड रैशनल, तुम क्यों एपिड्यूरल दे रही हो, स्पाइनल क्यों नहीं दे रही हो? Madam, because in case of the mitral stenosis patient, there is a risk of the fluid overload, and fluid overload must be avoided. And with the spinal anesthesia, we have to the anesthetist have to administer at least 2 to 3 liters of the fluid to prevent the hypotension, because there is an increased chance of the hypotension with the spinal. That's why the anesthetist they preferred the epidural anesthesia for the valvular lesions and for the cardiac diseases. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। प्राइमी मैडम बी जो है ना, ग्रेविडा हम्म। 2 पैरा प्लस 0, प्रीवियस वन LSCS 30 years old and chronic hypertension for 2 years with a history of the sudden collapse 2 hours after the previous LSCS, and she reverted back from the vent after 2 hours. Her angiography was done and she was diagnosed cardiomyopathy. Now discuss about mode and the risk of the anesthesia. मैडम ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैडम इसके मैं रिस्क फैक्टर्स लिखना चाहूंगी, मुझे आप देंगी 1 मिनट? Madam, in this type of the patient also, the preferred anesthesia, it is the epidural. But we can also offer the GA anesthesia also in this patient, but in liaison with the anesthetist. ओके। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू गिव एपिड्यूरल एंड जीए, स्पेशली Madam, एपिड्यूरल? Madam, is because first we need to confirm whether it's because the patient has a history of the collapse in her previous. She is hypertensive, and in her previous surgery she has a history of the collapse, and angiography has done. Then we have to confirm whether it's the dilated cardiomyopathy or it's hypertrophic cardiomyopathy. Then, depending upon the type of the cardiomyopathy, the ejection fraction of this patient and her coagulation indices, then we decide that whether we can do the epidural or we can give the GA, because with the GA we must have the all labs completed and her patient's complete blood picture with the platelet and her coagulation indices, PTA, PTT, all must be within the normal limits. You said you will like to know about the type of cardiomyopathy. Considering her history, non-chronic hypertension, sudden collapse after previous LSCS, and she was diagnosed with cardiomyopathy. What type of cardiomyopathy it could be? It could be hypertrophic cardiomyopathy.
Are you sure? Madam, madam, no, not, but 50-50, as I have the perception from the history of this patient and history of collapse, because collapse is giving the favor in favor of MI, that this patient has a sudden MI previously. Do you think it could be heart failure or MI due to cardiomyopathy, peripartum cardiomyopathy? Because she collapsed 2 hours right after her cesarean section. Yes, madam. It could be MI, and then a patient has to be put on the vent, or then she reverted from that. Okay. So you are giving her epidural and GA, both, right? Both can be No, given. I will, even in this patient also, I will prefer epidural over GA. Okay. Next. Priming gravida with the tricuspid and the mitral regurgitation at 36 weeks with elective LSCS. Madam, mitral and yes, tricuspid and the mitral regurgitation at 36 weeks with elective LSCS. Madam, this patient is also at increased risk of the fluid overload because she is having the regurgitant lesions of both the valves. So in this patient also we have to very keep an eye on the fluid balance of this patient. So in this patient also we will prefer the epidural. Okay. Can you give her spinal? नो मैडम, इसमें तो बहुत रिस्क हो जाएगा स्पाइनल में, बिकॉज अगर हम स्पाइनल देंगे और इसको रिगर्जिटेंट लेजन है, अगर इसको सडन हाइपोटेंशन हुआ तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगी. Okay. Next. Primary gravida at 38 weeks, the grade 3 cardiac failure for the elective LSCS. At 38 weeks is grade 3 cardiac failure for elective. Madam, this patient is having grade 3 cardiac failure. So in this patient, I will prefer GA, elective LSCS in GA with all the preparation. Okay. आसिया, तुमने टाइप ऑफ एनेस्थीसिया सबके बिल्कुल सही बताया, लेकिन थोड़ा सा रैशनल अपना जो है ना वो इम्प्रोवाइज कर लें आप. फर्स्ट आपका जो पेशेंट था वो था माइट्रल स्टेनोटिक का. ठीक है. लिस्ट पर है इलेक्टिव एलएससीएस, माइट्रल वेल्व एरिया उनका नहीं दिया हुआ, लेकिन जो स्टेनोटिक लीयर्स होते हैं इनमें आपको पता है कि इनका जो कार्डिक आउटपुट होता है ना वो फिक्स्ड होता है. तो वो फिक्स्ड कार्डिक आउटपुट अगर आप उसको जो है कोई भी स्पाइनल वगैरह दोगे तो वो आप नहीं फिर मेंटेन नहीं कर पाओगे. उस पर्टिकुलर वेल्व की स्टेनोसिस के हिसाब से कार्डिक आउटपुट जो है ना वो फिक्स करना पड़ता है, हमें मेंटेन करना पड़ता है. मोस्टली कहते हैं कि इसमें आप एपिड्यूरल दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जीए इज प्रेफर्ड. ठीक है. स्पाइनल हम नहीं देते. स्पाइनल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन स्टेनोटिक लीजन्स में. फिर आ जाते हैं आपका पेरिपार्डियम. पहले तो देखो ना, हिस्ट्री से ही आपको पता चल जाना चाहिए, नॉन केस ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन थी वो. ठीक है. और सीजर के बाद ही फौरन से जो है वो कोलैप्स हो गई, वेंट पे चली गई, एंजियोग्राफी भी हो गई और डायग्नोज हुई कार्डियोमायोपैथी. तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी है ना, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसको हुआ. इसमें जो रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, मोड एंड रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया है इस पेशेंट में, क्या हो सकता है? मैडम, इसमें भी हमें फ्लूइड बैलेंस ही मेंटेन करना है ना, हाँ. तो हमें ये भी. इसमें, और पेरीपार्टम में तो फ्लूइड को हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली यस. मॉनिटर करना होता तो मतलब चीजें हमारे कंट्रोल में रहे ना, तो उसमें स्पाइनल में तो फिर हाइपोटेंशन हो जाती है, तो हमें यहाँ भी एपिड्यूरल और जीए आप दे सकते हैं. डिपेंड अपॉन पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो 40 से ऊपर होना चाहिए, फॉर स्पेशली फॉर रीजनल. ठीक है. रीजनल के लिए उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से एटलीस्ट अबव होना चाहिए. फिर आ गया आपके रीगर्जिटेंट लियन. इसका भी आपने बिल्कुल सही बताया, रीगर्जिटेंट में आप रीजनल यूज कर सकते हैं. ये इतने ज्यादा हाई रिस्क लीजन्स नहीं होते, मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता. इसमें हमें जो है ना हम स्पाइनल एज वेल एज एपिड्यूरल हम दे सकते हैं. ठीक. उसके बाद आ जाता है आपका हार्ट फेलियर. तो हार्ट फेलियर में आप जीए ही देते हो.
हाँ मैडम, जो जीए की इंडिकेशन होती है वो 4 होती है ना। एक तो ये वाला के जिसमें ग्रेड 3 ग्रेड 4 हार्ट फेलियर हो, जिसमें आप उसमें आप जीए देते हैं। दूसरे आप सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन का अगर पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आ गया है तो उसमें जीए देते हैं। और दूसरे आप आइजनमेगर सिंड्रोम में जीए देते हैं। हाँ, जब इमरजेंसी में आता है ना तब आप जिए ही तब आपको देना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप उसके फ्लूइड्स अच्छे से। मैडम जीए के प्रीरिक्विजिट्स बताइएगा कार्डियक पेशेंट के लिए। हमें जीए के प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं? जीए के प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे? एक तो नॉर्मल होते हैं जो सारे, उसके एलएफटीज, उसके आरएफटीज, उसके प्लेटलेट्स, ये सारे जो हैं वो उसके नॉर्मल होने चाहिए। कार्डियक पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन एटलीस्ट 40 to 45 होना चाहिए, या उससे अबव हो तो अच्छी बात है। सही। ठीक है। तो कहने और का फिर मकसद है कि अलग अलग जो है ना इन सब लीजन्स का एनेस्थीसिया, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया बुक में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो ये एक जगह पर मैंने जो है ना ये सिनेरियोज, क्योंकि ये मैंने कहीं देखे थे अपनी तैयारी के दौरान, तो मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है, हमसे टाइप ऑफ एनेस्थीसिया पूछा जा सकता है तो हमें आना चाहिए। इतना ही काफी है, इससे ज्यादा कार्डियोलॉजी में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल हम मोस्टली नहीं देते स्टीनोटिक लियंस में, और हार्ट फेलियर में तो हम रीजनल देते ही नहीं है। फिर आपके ये रिगर्जिटेंट लियन है, इसमें आप दे सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी में भी आप रीजनल को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें मोस्टली एपिड्यूरल सेफ। मैडम, ले मैडम ये बात ना मैंने ना हमारे जो एनेस्थेटिस्ट आते हैं ना वो काफी सीनियर हैं, उनसे भी पूछी थी ना। वो भी एफसीपीएस है ना, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी जो मेरे जहन में जब से बैठी हुई है। उन्होंने कहा था कि जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं ना तो उसमें तो बस स्पाइनल को भूल जाओ कि हाँ, स्पाइनल कोई एनेस्थीसिया भी होता है कार्डियक पेशेंट्स के लिए, एग्जैक्टली। चाहे किसी भी किस्म का जो है ना वो कार्डियक पेशेंट हो। इसकी की मैं भेज दूंगी आप लोगों को, इसी में फिल करके ना, मैंने फिल नहीं की है इसमें, मैं फिल करके आप लोगों को भेज दूंगी। सना, आपने हैंड रेज किया था। वो मैंने भी बस यही बात करनी थी डॉक्टर ना, मेरी वो जो इधर हमारे एनेस्थीसिया की थी ना एक्चुअली, तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था। हाँ तो जी। उन्होंने मुझे एक निमोनिक बताया था कि आर फॉर रीजनल और आर फॉर हम्म। रिगर्जिटेशन जो है। तो सही। आपने बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जो है ना ये रिगर्जिटे मतलब ये लिलियंस हैं, इनमें हाँ सिर्फ आप रीजनल कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा जी। बाकी जो कार्डिक का है उसमें आपने विद कॉशन के आपने हाइपोपरफ्यूजन नहीं होने देनी और उसका जीए ही आपने करना है। हाँ, तो ये निमोनिक। इमरजेंसी में बेसिकली जीए यूज करते हैं, वैसे जो है ना वो रीजनली यूज करते हैं, और उसमें एपिड्यूरल। जी। इवन अगर एपिड्यूरल ड्यूरिंग लेबर देना है तो भी, मतलब ड्यूरिंग लेबर एनाल्जेसिया देना है तो वो भी एपिड्यूरल सेफ है इनके लिए। हाँ, इसमें वो लो डोज रखते हैं क्योंकि हमने हाँ, बस लो डोज हाइपोक्सी देते हैं और स्ट्रिक्टली बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस जी करते हैं स्ट्रिक्टली। चलें, जी। नेक्स्ट कैंडिडेट। मैं करूँ डॉक्टर? ये कोई नहीं कर डॉक्टर रहा तो। जैनब। जी जी। अच्छा, एक अगर मिनट। कोई और। चलें, पढ़ें अपना सिनेरियो पढ़ें। जी। You are registrar in the antenatal clinic and you see Mrs. Salma, 37-year-old Primigavida, who is 6 weeks pregnant and known case of idiopathic pulmonary hypertension for the past 3 years. She is on the Bosentan, warfarin, 4 milligram daily and nifedipine. This is simulated uh, task. Next 10 minutes, take history, justify the management. ठीक है, समझ आ गई। यू कैन टेक फ्यू सेकेंड्स टू थिंक जी जी। अबाउट। Madam, should I start? जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। नाम डॉक्टर जैनब और मैं पिछले 4 साल से गायन के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज मैं आपसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ सवालात करूंगी। ठीक है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पलवश है। अच्छा। अच्छा पलवशा, मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र 37 है और हम्म, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जी। पिछले 3 साल से, और अभी आप हमल से भी हैं, 6 हफ्ते का हमल है। क्या ये जी। मालूमात दुरुस्त है? जी डॉक्टर साहब, दुरुस्त अच्छा। है। जो दवाइयाँ ले रही हैं बुसंटान और वारफेरिन, ये भी जी। ठीक है? अच्छा।
अच्छा परवैया, जैसे कि हम पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवालात करूंगी। जी फिर डॉक्टर। जो है हम डिटेल में मैं आपको इस बारे में मालूमात दूंगी। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि 3 साल पहले आपको बीमारी पता हुई थी, क्या हुआ था आपको? डॉक्टर साहब, मेरी मैं तबीयत खराब रहती थी, मुझे सांस का भी मसला रहा, और मैं एकदम जो है ना कोलैप्स हो गई थी। तो फिर मेरे सारे दिल के टेस्ट वगैरह उन्होंने किए, क्योंकि पहले ऐसे ही मैं कोलैप्स हो जाती थी तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस बार जो है ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उन्होंने फिर चेक किया मुझे, उन्होंने कहा आपके तो ब्लड प्रेशर वगैरह भी जो है वो सही नहीं है। और तो टेस्ट वगैरह किए, मतलब मेरे ब्लड प्रेशर कभी ज्यादा हो रहा था कभी कम हो रहा था। तो तो फिर तीन उन्होंने, साल पहले आपको पता लगा? हाँ जी, फिर उन्होंने जो है टेस्ट करवाए और फिर मुझे इन दवाइयों पे डाल दिया। मैं तब से इन्हीं दवाइयों पे चल रही हूँ। अच्छा, इस पे आपकी बीमारी कंट्रोल है? हाँ, मेरी दवाइयों से कंट्रोल है बीमारी। अच्छा, आपको पैदाइशी कोई दिल का मसला? नहीं डॉक्टर साहब, बस यही जब मुझे शुरू हुआ था ना, सांस फूलता था, चेस्ट पेन होता था, बस ये पहली बार ही मुझे हुआ था जो कि। अच्छा, जो आपको सांस फूलता था वो किस तरह था, यानी कि बैठे बिठाए होता था, सीढ़ियाँ चढ़ने से, काम हाँ जी, करने से होता था? बैठे बिठाए उस वक्त तो होता था, लेकिन अब ठीक है, अब वैसे नहीं, अब थोड़ा बहुत काम करूँ तो फिर अब भूल जाते हैं, इस अदरवाइज नहीं। वक्त आपको कोई मसला, जैसे खांसी आती हो, सोते हुए सांस फूलता हो, या फिर आप नींद से उठ जाती हो सांस की वजह से, नहीं नहीं, अब ऐसा कोई ऐसा कुछ मसला नहीं है? होता, नहीं नहीं, अब नहीं होता ऐसा कुछ। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है वो आप रेगुलर अपने डॉक्टर को चेक करवा रही हैं? हाँ जी, डॉक्टर को मैंने चेक आखिरी बार कब करवाया। चेक करवाया था? डॉक्टर साहब, मैंने 3 महीने, शायद 3 महीने पहले कराया था, मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए हैं मुझे। उन्होंने आपको ईको वगैरह करवाया था? हाँ जी, उन्होंने मेरा कराया था, मेरा ठीक इजेक्शन था वो? फ्रैक्शन ठीक आया था, हाँ जी। अच्छा, आपके डॉक्टर को, दिल के डॉक्टर को पता है कि आप हमल से हैं या आप हमल करना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब, मेरा ये हमल बस हो गया ऐसे ही, तो मैंने जब उनके पास गई मैं परेशान होके कि उन्होंने क्योंकि कहा था कि ऐसे हमल नहीं करना, दवाइयां बदलेंगे, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर अब जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि सीधा बस आप अपनी गायनी की डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको फिर बताएंगी सारा लाहे अमल आगे का। ठीक है, अभी मैं आपको सारा इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। जी। अच्छा, आप चाहती हैं कि ये हमल आप कंटिन्यू करें? क्या मतलब डॉक्टर? अ, चलिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। इससे पहले कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। जी। परवैया, आप मुझे ये बताइए, इसके अलावा आपको कोई बीमारी, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, या खानदान में किसी को दिल की बीमारी, कोई और मसला? नहीं डॉक्टर, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी जो है वो आप कोई तम्बाकू नशे, सिगरेट, हुक्का नशे, ऐसी चीजें तो इस्तेमाल नहीं करती हैं? किसी बीमारी के लिए कोई दवा ले रही हूँ इस बीमारी के अलावा? मैं यही दवाइयां ले रही हूँ और कोई नहीं ले रही, बाकी बस मैं फॉलिक एसिड ले रही हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे जब डॉक्टर ने कहा ना कि ऐसे ये दवाइयां सेफ नहीं है, तुम्हें तो मतलब जी प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए थी जी और आना जी था जी, मैं मेरे आपकी पास, मैं बहुत बिल्कुल सही, परेशान मैं हूँ आपकी कि परेशानी अब समझ सकती मतलब हूँ परमेशा। मुझे क्या करना कि चाहिए। अच्छा, देखिए, आप चूंकि अकेली आई हैं, और आप चाहेंगी कि किसी को अपने साथ बुला लें? नहीं, मैं अकेली आया, मुझे बुला बताएं। लें। अच्छा, देखिए परमेशा, जैसे कि आपको पता है कि ये जो आपको बीमारी है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हम्म, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी सीने की में खून की रगें होती है ना, उनमें जी। खून का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये बहाव पलट कर हमारे जो दिल का सीधा हिस्सा होता है उसकी तरफ जाता है। तो हमारे दिल का जो सीधा हिस्सा है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और प्रेगनेंसी में जो है ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिल कमजोर हो जाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी डॉक्टर, समझ आ रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब, देखिए, मेरे बच्चे को क्या वैसे जो आप नुकसान दवा होगा? ले रही हैं, जी जी बोले। मेरे बच्चे को क्या नुकसान होगा डॉक्टर साहब? जी जी, देखें, अभी जो दवाइयाँ ले रही हैं आप, ये आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है। अब जो है वो आप, आपके पास जो है, हमारे पास दो तरीके होते हैं। ज्यादातर हम यही मशवरा देते हैं कि औरत हमल ना करे। तो आपके पास एक ऑप्शन टर्मिनेशन का है, कि आप ये जो है एडमिट करके हम बच्चा मेडिकल, यानी कि दवाइयों से या सर्जरी के जरिए ये बच्चा जाया कर दें। उसके बाद हम आपको वक्फे के तरीके बताएंगे, और जो है वो ये सब चीजें हम आपके दिल के डॉक्टर के मशवरे के साथ करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप ये हमल कंटिन्यू करना चाहती हैं,
तो ऐसी सूरत में भी जो है आपकी ये जो है बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि ऐसी सूरत में जो है माँ और बच्चे दोनों को खतरे होते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं पलवैया? जी डॉक्टर साहब, कितने परसेंट चांसेस जी। हैं कि मतलब मेरी जान को अच्छा। खतरा हो सकता है? जी जी, देखिए ऐसे में ये कि माँ को ये होता है कि ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में माँ का जो दिल फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। माँ को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, खून जमने की बीमारी, और खुदा ना खास्ता 50 40 से 50% में ऐसा होता है कि माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरा ये कि आपके बच्चे को जो है बच्चा ज़ाया भी हो सकता है, बच्चे में कोई अलसी नुक्स भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो अ बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, या बच्चा वक़्त से पहले पैदा हो सकता है, और खुदा ना खास्ता बच्चा पेट में मर भी सकता है। अच्छा पल भैया, मेरा मैं आपको डराना नहीं चाहती। मैं सिर्फ आपको इन चीज़ों से आगाह करना ज़रूरी है। अब क्योंकि तब अगर आप ये अगर मैं चूज करती हूँ कि मैं अभी अपना अबॉर्शन करा लूँ, तो आप क्या सेफ अबॉर्शन मेरा कर सकती हैं? और कितने परसेंट चांस है कि अबॉर्शन अगर मैं करा लूँ तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा? जी, जी। अगर आप अबॉर्शन अभी करवाती हैं, तो वो भी हम आप माहिर डॉक्टरों की टीम होगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, आपके सारे टेस्ट करवाएँगे, और ऐसे में जो है वो हम आपका ऐसे में भी खुदा ना खास्ता माँ की जान को 7% यानी कि 100 में से 7 औरतें ऐसी होती हैं जिनकी जान को खतरा होता है। उसके बाद जो है हम आपको वक्फे के लिए तरीके बताएँगे, जिसमें प्रोजेस्टेरोन के यानी आप छल्ला भी रखवा सकती हैं, गोलियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और इंजेक्शन भी लगवा सकती हैं। ये ठीक है डॉक्टर। सबसे अगर ज़्यादा अगर ये मैं कि अपना आप हमल अगर मैं अपना हमल जारी रखना चाहूँ तो फिर आप प्लीज मेरा कुछ अच्छे से ख्याल रख सकती हैं मेरे हमल का? कैसे जी, जी। रखेंगे आप मेरा ख्याल? मैं आपकी बिल्कुल परेशानी पलवाइया समझ सकती हूँ। आप क्योंकि ये देखिए मैंने आपको बताया एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि माँ और बच्चे दोनों को ये खतरात हो सकते हैं। जी। लेकिन आप परेशान ना हो, माहिर डॉक्टरों की एक टीम होगी जिसमें हमारे दिल के डॉक्टर होंगे, मैं एज़ अ ऑब्स्टेट्रिशियन होंगी, सीनियर मिडवाइफ होंगी, एनेस्थेटिक इंटेंसिविस्ट, ये सब डॉक्टर मिलकर आपकी प्रेगनेंसी में ए, अ, आपका इलाज करेंगे। आपको हमारे पास बाकायदगी से चेकअप करवाने होंगे। हम आपके दिल के टेस्ट और बाकी जो खून के टेस्ट है वो करवाएँगे। शुरू के महीनों में जो है वो बच्चे के लिए, यानी कि अभी आपका 6 हफ्ते का अमल है, तो हम जो सबसे पहले जो आप ये दवाइयाँ ले रही हैं, ये दवाइयाँ हम आपके दिल के डॉक्टर के मशवरे से ही चेंज करेंगे, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर साहब, इसका आप बच्चे पे बहुत किस दवाई पे नुकसान। डालेंगे फिर मुझे? आप कौन कौन सी दवाई बदलेंगी और कौन सी दवाई डालेंगी? देखिए, अभी जो आप दवा ले रही हैं वारफेरिन, वो खून में जो जमने वाली बीमारियाँ होती हैं उसको कम करने के लिए दी जाती है। तो ऐसी सूरत में जो है हम आपके डॉक्टर के मशवरे से अभी ये बंद करेंगे, और उसकी जगह जो है इंजेक्शन दिए जाएँगे, और फिर बाद में आपको दोबारा ये गोली शुरू कर दी जाएगी। और दूसरा ये है कि अभी आप जो बोसेंटान ले रही हैं, ये जी। भी आपकी जो ये मैंने आपको बताया है जो अ, जो रगों में सिकुड़ने की और इसकी वजह से के लिए दी हुई है डॉक्टर ने, इसकी जगह हम प्रोस्टासाइक्लिन के नाम से एक दवा आती है वो शुरू करेंगे। उससे ये है कि ये जो आपकी खून की रगें खुली रहेंगी, और खुदा ना खास्ता जो कि खून मंजमद करने वाले जिन्हें हम प्लेटलेट कहते हैं, यानी कि खून मंजमद होने का जो है खदशा कम हो जाएगा। ये दोनों दवाइयाँ शुरू करेंगे, और जैसे कि आप ब्लड प्रेशर की गोली ले रही हैं, तो हम अ, डॉक्टर के मशवरे से ये गोली जो है ये भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि वैसे जो है हम ब्लड प्रेशर आपका जो है रेगुलर चेकअप करेंगे। हर महीने आपका चेकअप करेंगे, उसमें आपके जो है दिल के अलामात को देखा जाएगा कि ये आपकी बीमारी किस हद तक कंट्रोल है इन दवाइयों पर, और बाकायदगी से आपके और आपके बच्चे के टेस्ट कराएँगे। बच्चे के शुरू के महीनों में 11 से 14 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। उसके बाद बच्चे की बनावट के लिए, ख़ास तौर पे बच्चे के दिल के लिए जो है वो हम को देखने के लिए हम बनावट का 18 से 21 हफ्ते में एक टेस्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराएँगे। ज्यादा और हो इसके अलावा जी डॉक्टर। आपका टाइम अप हो गया। अब आप फर्दर मैनेज करो इसको। बच्चे के दिल का एको किया जाएगा, और बच्चे की ग्रोथ क्योंकि इसमें मुतासिर होती है, इसलिए हम 24 से 26 हफ्ते के बाद रेगुलर बच्चे की ग्रोथ के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी डिलीवरी आपने कैसे करवाएंगी?
इसमें ये है कि माँ को ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उन्हें ज्यादा दिन, अगर ज्यादा अरसे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकना पड़ता है ज्यादातर माँ हमल के आखिरी महीनों में, तो ऐसे में हम आपको एडमिट रखेंगे। वैसे नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ऐसी चांसेस में बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो कि पूरे मुद्दत तक जाए। तकरीबन 100 में से 25% ऐसी 25 औरतें ऐसी होती हैं जो कि पूरी मुद्दत का हमल करती हैं। ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें। और डिलीवरी के बाद भी जो है हम आपका और आपके बच्चे का ख्याल रखेंगे। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी दवाइयाँ चेंज करेंगे और वक्फे के लिए हम आपको बताएंगे, जो कि मैं आपको पहले तरीके बता चुकी हूँ, लेकिन हमारा डॉक्टर साहब मशवरा कब यही होगा कि हम करवाएंगी, मुकम्मल मेरी तौर पर, डिलीवरी कब करवाएंगी, कितने हफ्तों पे कराएंगी? मैंने आपको जैसे आपको बताया कि ज्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि जो है मुद्दत पर लेके जाएं, लेकिन बहुत कम खवातीन ऐसी होती है जो मुद्दत पर जा पाती हैं इस बीमारी के साथ। तो ऐसी सूरत में जो है हम डॉक्टर के मशवरे से और बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाला इंजेक्शन देख के वक्त से पहले, अगर माँ को जान को खतरा हो तो फिर पहले भी अ, हम डिलीवरी करवाई जा सकती है। अ, और ज्यादातर चांसेस जो है वो ऑपरेशन के होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप मेरी नॉर्मल करवाएंगी या ऑपरेशन करवाएंगी? अच्छा, ये डॉक्टर मैं भूल गई कि जो है वो, अच्छा बताना देखें पलवैशा, अगर इसमें सब कुछ ठीक होगा तो हमारा मकसद यही होगा कि आपकी इको करवाए जाएंगे, आपके टेस्ट कराया, अगर सब कुछ ठीक होगा तो नॉर्मल करवाया जा सकता है डिलीवरी। अच्छा, सही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन के चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं ऐसी डॉक्टर साहब खवातीन में। एक मुझे बात बताएं, अगर मैं अभी बच्चा अपना जाया कर लेती हूँ तो मेरी तो बीमारी बहुत खतरनाक है, मैं तो फिर इसका मतलब है माँ बन ही नहीं सकती, लेकिन मुझे तो बच्चे चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, मेरी तो एज भी 37 है। बिल्कुल परवैशा, आपकी जो परेशानी बिल्कुल वजह है। आप देखें, ऐसी सूरत में देखें, हमारे लिए माँ की जान सबसे ज्यादा अहम होती है। आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो देखें, आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकती हैं, और दूसरा ये होता है कि आपके जो अंडे हैं वो आपके शौहर के, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें ये होता है कि आपके शौहर के जिस्म में से मिला के खास लेबोरेटरी में, और वो हमल जो है कोई और औरत के बच्चेदानी में दिया जाए, जिसको हम सरोगेसी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आपके लिए फिर एडॉप्टेशन जो है ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, सही है डॉक्टर साहब। ठीक है और कुछ डॉक्टर। पूछना चाहेंगे? ये किताबी मालूमाती किताबचा है, इसमें सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर पलवशा आप कुछ पूछना चाहें। नहीं डॉक्टर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैनब, तुमने ना 4 मिनट में, हाँ 4 मिनट में मैनेज किया है बाकी का। तो आपने हिस्ट्री ना 5 मिनट तक हिस्ट्री ली है। ठीक है, तुम लोग अपनी हिस्ट्री का टाइम अभी तक सही नहीं कर पा रहे हो। हिस्ट्री बहुत लंबी लेते हो तुम लोग। इसको सही कर ले मैनेज, तो आप सब, आपको मैनेजमेंट आती है, आप लोगों को मैनेजमेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप सबकी जो प्रॉब्लम है ना, आपकी हिस्ट्री है। टाइम मैनेजमेंट का। इट मीन्स के योर टाइम मैनेजमेंट इज नॉट गुड। यू हैव टू वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। उसका तरीका यही है कि जो हिस्ट्री आप लंबी कर रहे हो, आपके जब बने बनाए उर्दू के सवाल लिखे हुए होंगे ना आपके पास, तो बस उसको जल्दी जल्दी से पूछती जाओ। ठीक है, चले, अब आ जाते हैं जी। अपनी मैनेजमेंट पे। आपने माशाल्लाह टॉपिक पढ़ा है, थ्योरेटिकली पढ़ा, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छा कर लिया। सारी चीजें आपने टच की। पहले आपने मेरी बीमारी का पूछा, मुझे कब से ये बीमारी है वो लिखा हुआ है, आपको क्या इलामात थी वो भी आपने पूछा, मैंने इलामात भी बता दी। आप दवाइयाँ ले रही हैं, आपकी दवाई आपकी इस बीमारी कंट्रोल है? जी जी कंट्रोल है। फिर आपने एक हॉस्पिटल एडमिशन की, आप पूछ लेती कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका दिल के मसले की वजह से? ये दो सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन, जो नेहा क्लासिफिकेशन आपको करनी होती है ना, वो पहले वाली मैंने खुद बताई, अब की उसकी नेहा क्लास 2 आपको दी हुई है। जब दी हुई है ना तो फिर छोड़ दो, फिर अपना टाइम ना जाया करो। सही है? सही। ठीक, बस एक सवाल आप कर सकते हो। अभी देखो, नेहा क्लास 2 उसकी डायग्नोस्ड का है, बस अब करंटली वो किस क्लास में फॉल हो रही है, इफ शी सिम्टोमेटिक और नॉट, वो आप एक सवाल करोगे, बस ज्यादा इतने सारे सवाल नहीं करने। ठीक है, ओके।
ओके अच्छा, डॉक्टर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया करो, सिनेरियो को जब 2-3 बार पढ़ोगे ना गिवन टाइम में तो आप रजिस्टर कर लोगे। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं कि उसने पहले से दिखाया था या नहीं दिखाया था डॉक्टर को, उसने कब, उसने 4 महीने पहले दिखाया था और वो बस प्रेग्नेंट होकर आ गई। आपने कॉन्ट्रासेप्शन का पूछा था मुझसे कि आप पहले से कोई हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही थी। मैंने पूछा कि आपको बताया गया था कि आपको वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल करना है। तो आपने कुछ इस्तेमाल किया? आप ये पूछे, आप वक्फे के लिए कुछ इस्तेमाल कर रही थी या नहीं, क्योंकि वो सडन प्रेग्नेंट होके आ गई है ना। नहीं। ठीक है, आप वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल करी थी, वो आपको बताएगी कि उसने वक्फा किया है या नहीं। आप ऐसे सवाल करोगी, यू आर लीडिंग। आप ये पहले, बजाय इसके कि आप पहले ये पूछो कि अच्छा आपने वक्फे के लिए कुछ इस्तेमाल किया, अच्छा क्या इस्तेमाल किया, अपना एक सवाल जाया कर रही हो, आप टाइम भी जाया कर रही हो। आप पूछो आपने वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल किया। ठीक। अगर उसने किया होगा तो बता देगी, नहीं किया होगा तो बता दे मैंने तो वक्फा किया ही नहीं। तुम्हें दोनों सवाल मिल गए, सवालों के जवाब मिल गए, ठीक है। नहीं। अपने सवाल ऐसे बनाने हैं कि एक सवाल पूछो और उसमें आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशंस मिल जाए, आगे नया सवाल ना करना पड़े, ठीक है। ओके। अच्छा जी। उसके बाद फिर आपने इस डिजीज को मरीज को बताया, कि बहुत अच्छे से बताया माशाल्लाह, उर्दू में बड़ा अच्छा बताया। इसको लिख लेना और बाकियों को अगर प्रॉब्लम है बताने में तो तो। मैंने लिखा था डॉक्टर, मुझे भी ये इतनी टिपिकल याद नहीं हो रही थी, मैंने ये फिर उर्दू में सुबह में बना बहुत के अच्छे लिखा से है ये। किया। और इसके साथ ही जो है ना, आप ये भी ऐड कर दो कि ये जो बीमारी है क्योंकि ये पेचीदा है, तो क्या आपको आपके डॉक्टर ने बताया था कि प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो उसने आपको बोला हाँ डॉक्टर साहब मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि नहीं करनी। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि मैं तो अब प्रेग्नेंट हो गया, बड़ी परेशान हूँ, वो आपने एड्रेस कर दिया। फिर अब आप उसको ब्रेकिंग बैड न्यूज करो, ये जो आपने बोला ना कि माँ को रिस्क होते हैं, बच्चे को रिस्क होते हैं, आप सबसे पहले देयर एंड देन यहाँ पर आप ब्रेकिंग बैड करोगे। पलवशा, मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि चूंकि इस बीमारी की नौयत से आप आगाह हैं, और ये बीमारी की, जो जो इस बीमारी से वाली खवातीन होती हैं, अब मेरी टूटी फूटी उर्दू होगी, जाहिर सी बात है मैं कंपोस्ट करके नहीं बैठी खुद को एज अ कैंडिडेट। तो सुन लो, बस मैं आइडिया दे रही हूँ कि ये जो इस बीमारी वाली खवातीन होती हैं, उनको हम डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए बेस्ट यही होता है कि वो हमल ना करें, क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है। ठीक है, 90 से 100% उनकी जान को इस बीमारी से खतरात लाहक होते हैं। तो अब क्योंकि आप प्रेग्नेंट होके आ गई हैं, तो अब मेरा आपको यही मशवरा है, आपको आपको मशवरा है कि आप जो है ये बच्चा जो है आप या तो जाया कर दें, जो कि आपके लिए बेस्ट है, ऐसे बोलेंगे जो आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इसको, दूसरा ऑप्शन ये आप कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन मोर्टेलिटी बताओ उसको। ठीक है, मोर्टेलिटी कितनी परसेंट है जैनब? डॉक्टर 40 to 50% है कंटिन्यू इसके, करती है तो अगर ठीक ये है, कंटिन्यू करती थी। कंटिन्यू करती है तो बल्कि 50% से भी ज्यादा ही है। अच्छा, फिर जो है अब फैसला जो है वो आप करेंगी, आप, हम हर, आपके हर फैसले में आपके साथ है। फिर वो आपको बोलेगी कि डॉक्टर, इफ आई डिसाइड कि मैं अबॉर्ट करूं तो फिर आप मेरी क्या केयर करेंगे, वो आपने बता दी सारी। लेकिन उस पे भी मोर्टेलिटी उसने, पेशेंट ने खुद पूछी, लेकिन आपको बतानी है कि वो भी सेफ प्रोसीजर नहीं है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन, विदाउट मोर्टेलिटी के रिस्क के नहीं है। उसमें भी 100 में से 8%, 8 औरतों को जो है वो क्या कहते हैं, उनकी जान को खतरा लाहक होता है। ठीक है, जी जी। ये साथ ही मोर्टेलिटी जरूर बता देनी है। अच्छा, वो आपने सारा बता दिया, आपको कॉन्ट्रसेप्शन बताई जाएगी, दिस मीटिंग कैन एंड एनी टाइम। जी जैनब। जी जी डॉक्टर। ठीक है ना, तो मैं ये बता रही थी कि आपने साथ ही साथ उसको, मतलब ये डिजीज सीरियस है ना, आपने मरीज को सारी सीरियस चीजें बतानी है, स्पेशली जो उसकी डिसीजन में हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है ना, तो आपने जब ओके। अबॉर्शन का भी बताना है ना, आपने बोलना है कि वो भी सेफ सेफ प्रोसीजर नहीं है, उसमें भी मम्मा को जो है ना उसकी जान को खतरा लाक है। ठीक है, और वो आपने बता दी थी, आपको याद थी, फिगर्स आपको याद थी। ठीक, उसके बाद फिर उसने बोला अगर पेशेंट आपको नहीं बोलती, आपकी अबॉर्शन वाली पूरी हो गई चीज, तो आप बोलें आगे खुद ही शुरू करें। अगर आप ये डिसाइड करती हैं कि आप कंटिन्यू करेंगे, हमल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, ये मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि अगर मरीज आपकी बिल्कुल चुप रहती है,
तो आगे दूसरे ऑप्शन की तरफ आप मूव करो ना। ठीक है, खुद ही बताओगी। मैंने तो चलो तुमसे पूछ लिया था। फिर आप बताओ जी। अगर फिर हम एमडीटी आपने बताया, आपका बाकायदगी से जो है वो चेकअप होगा। आपके डॉक्टर के उसके मशवरे के साथ आपकी दवाइयाँ चेंज होंगी। सबसे पहले आपने दवाइयों को बोला, आप हैफेजर नहीं गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सबसे पहले मेडिसिन को टच किया। और मैंने आपसे मेडिसिन पूछ ली तो वो आपने मेडिसिन बताई। ऑप्शन एक और भी है, सिलाडेनफिल भी दे सकते हैं हम। ठीक है। जी जी। और फिर वो दवाइयों पे आपकी जो है बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। आपको अस्पताल में दाखिल होना भी पड़ सकता है ताकि आपकी जो है वो मॉनिटरिंग हो सके, आप रेस्ट कर सकें, क्योंकि ऐसी पेशेंट्स को रेस्ट चाहिए होता है और उनके मल्टीपल एडमिशन्स होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है। अच्छा, आपकी 1-to-1 केयर दी जाएगी। फिर जो है उसकी बच्चे की ग्रोथ किसके जो है वो करेंगे हम, क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। फीडिंग बहुत। फिर उसने, हाँ जी, फिर उसने जो है आपसे पूछा डिलीवरी। अच्छा जैनब, इसको हम टर्म पे तो लेके जा ही नहीं सकते ना। आपने खुद ही अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया था बाद में कि ये टर्म तक नहीं जा पाती। तो हम इनकी जो डिलीवरी है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो हमारे पास सेफ विंडो है ना, जिसमें हम इनको पहले से टर्म से पहले डिलीवर करा सकते, दैट इज 32 to 36 वीक्स। यहाँ पर फीटल वायबिलिटी, फीटल मेच्योरिटी, लंग मेच्योरिटी भी हो जाती है। आप आराम से बेबी को जो है ना निकाल सकते हो, ताकि मम्मा को भी आप टर्म पर लेके जाके उसके जो एकदम फ्लूइड शिफ्ट होता है, फ्लूइड ओवरलोड में जाती है और उसकी वजह से उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट ना हो। तो सेफ विंडो ये है 32 to 36 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द मदर कंडीशन। ठीक है। ओके। उसके बाद आपसे जब मरीज ने पूछा मोड ऑफ डिलीवरी, तो आप बोलें कि आपकी डिलीवरी दोनों तरीके से हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, आपको दोनों अलाउड है। आपकी सेफ डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ये है, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो बेस्ट ये है कि आप, हमारा मशवरा ये है कि आप ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके फ्लूइड्स और वो हर चीज एनेस्थेटिस्ट के कंट्रोल में रहती है ना, हर चीज हमारे कंट्रोल में होती है, बजाय इसके कि वो सडन लेबर में आ जाए। समझ रहे हो। जी जी। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, इलेक्टिव सेक्शन इज बेटर, क्योंकि हम प्लान डिलीवरी करवाते हैं इन पेशेंट्स की, तो हम पूरे एमडीडी के साथ इसकी जो है ना हम मैनेज करते हैं डिलीवरी। ठीक है। उसके बाद जो है एक प्लान हम इनका अर्ली इमरजेंसी डिलीवरी का भी बना के रखते हैं, अगर लेबर में चली जाती हैं तो। ठीक। और कंसल्टेंट लेड यूनिट में ये जरूर बताना है, कंसल्टेंट लेड यूनिट में डिलीवरी होगी और ऐसी जगह डिलीवरी होगी जहाँ पे इमीडिएट आईसीयू विद वेंट अवेलेबल होगा। ये पेशेंट सेफ्टी का पॉइंट है, जैन, आप नोट कर लो। जी जी डॉक्टर। ठीक है। और आपके बच्चे, आपको अगर आप लेबर में जाती हैं तो आपको और आपके बच्चे को 1-to-1 केयर दी जाएगी, लगातार मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है। और जो है आपका जो फ्लूइड के ड्रिप्स हैं उसका बैलेंस किया जाएगा। ठीक। और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आपको, आपके लिए अच्छी नहीं है, वो हम अवॉइड करेंगे। वो भी बताओ, वो भी पेशेंट सेफ्टी का पॉइंट है, नंबर लेने हैं हमने उसके। कल तुम सब ने अर्गोमेट्रिन इस कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया था कार्डियक पेशेंट में, आज क्यों नहीं बताया? बताओ, मरीज को बताओ। पेशेंट सेफ्टी का ये है। ठीक है। ये वेदो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। फिर एंड में सही। पेशेंट ने आपसे पूछा कि डॉक्टर साहब, अगर मैं अभी अबॉर्ट करा लेती हूँ फिर मैं माँ कैसे बनूंगी? उसका माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। आपका दिमाग चल गया, आपने सारी चीजें बता दी। खत्म। ओके। इजी पीजी। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल और पूछना था। ये जो प्रोस्टासाइक्लिन तो बोसेंटन को रिप्लेस कर देते हैं हम। अच्छा, हाँ। नीफेडिपिन के लिए भी मैं कोई और एंटी हाइपरटेंसिव करूँ या नहीं इसी को कंटिन्यू? नहीं, निफेडिपिन इज सेफ। निफेडिपिन इज सेफ। और देखो, वॉरफेरिन, हाँ वॉरफेरिन की कंसिडरेशन है, हम वॉरफेरिन को चेंज कर सकते हैं। वैसे तो वो कितना 4 मिलीग्राम ले रही है ना आपकी पेशेंट। जी जी। लेकिन हाँ। हाँ, वो ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर वो आपके हाँ। दिल के डॉक्टर चेंज करना चाहे तो फिर वो हेपरिन से कर सकते हैं। हाँ, फिर वो चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पलशा। जैनब बहुत अच्छा पढ़ के आई हो माशाल्लाह। बस प्लीज अपनी हिस्ट्री पे काम कर लो, टाइम बहुत जाया हो रहा है आप लोग का हिस्ट्री में। जी जी इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर हो रही है ओ, आप लोगों को? वही हो रही है डॉक्टर जो पहले वाली मेरी वाली। हाँ ना, केस नंबर 5 दिख रहा है ना?
हाँ जी। नहीं डॉक्टर पलवशा, ये भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाला ही है जो आपने अभी करवाया हाँ है। हाँ, तो स्क्रीन तो दिख रही है ना, मैं मेक श्योर कर रही हूँ स्क्रीन शो हो रही। जी जी, स्क्रीन दे रही है। चलो ठीक है। ओके। किसी की कोई क्वेरी, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ के आते तो तुम लोग की क्वेरी भी होती। बस इतना ही है इसमें, इसमें ज्यादा नहीं है। डॉक्टर हाँ पलवशा, लेकिन काइंडली इससे मेडिकेशन ज्यादा का थोड़ा सा इंडिकेटर बता नहीं दे। मिलता। जो प्रोस्टासाइक्लिन के उन्होंने बताइए, और इसमें क्या डायूरेटिक्स दे सकते हैं, और कुछ और मेडिकेशन और क्या हम देंगे इसमें? आपने कुछ नहीं देना इसको। आपने, इस सिनेरियो की रिक्वायरमेंट ये है कि जो ड्रग्स ये ले रही है, आर दोज ड्रग्स सेफ इन प्रेगनेंसी और नॉट। ठीक है, ये पेशेंट सेफ्टी का पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पेशेंट सेफ्टी का ये पॉइंट है कि उसकी जो प्रेगनेंसी है दैट इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क, और ये WHO मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन क्लास 4 बन रही है ये पेशेंट, जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है डिलीवरी। ठीक है, सिरे से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सॉरी डिलीवरी कह रही हूँ, प्रेगनेंसी। और अगर पेशेंट अब प्रेग्नेंट होके आ गई है तो फिर आपको सारे ज्यादातर बातें आपको पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन वाली होनी है इसमें। ठीक है, MDD तो तुम लोग आराम से इन्वॉल्व कर देते हो, उसमें तुम भूलते नहीं डॉक्टर पलवशा, इसमें एक और चीज भी पूछनी थी कि जैसे अगर जैसे ये हमारा एमसीक्यूज भी थ्योरी में कई दफा ये एमसीक्यू भी आया है ना, तो ये टिपिकल एमसीक्यू होता था कि पेशेंट 8 वीक्स प्रेग्नेंट है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ आई है, क्या करेंगे? तो उसमें यही करना होता था, रेफर टू कार्डियोलॉजिस्ट एंड एडवाइस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसकी की थी, इस एमसीक्यू की है। लेकिन अगर यही पेशेंट जो है वो वायबिलिटी के बाद आती है, 28 वीक्स 24 वीक्स पे आती है, तो फिर भी हम इसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की काउंसलिंग करेंगे? ये 28-24 वीक्स पे आएगी ही नहीं, पहली बात ये आपको ऐसा सिनेरियो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम में ये सिनेरियो नहीं मिलेगा। एग्जाम में वो ड्यू होके आ सकती है इस तरह से कि उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला गया था, उसको बोला गया था कि तुमने प्रेग्नेंट नहीं होना है, लेकिन वो होकर अब आ गई है, तो अब आपको पूरी केयर, अभी वो क्या कर सकती है, what is the option right now for her, and if she opt for continuing this pregnancy, then what care will you provide and what risks are associated to her especially, and as well as her baby, in terms of her condition, relevant to her condition and the medicines as well। ये सिनेरियो तुम्हारा आएगा, इससे ज्यादा तुम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। आप जो बात करें 28 वीक्स पे, वो रियल टाइम सिनेरियो, रियल लाइफ में आ सकती है ऐसी मरीज 28 वीक्स पे। फिर अब आप उसको, फिर आप उसकी कंडीशन असेस करोगे और मदर की प्रायोरिटी पहले होगी। अगर मम्मा डिटीरियोरेट हो रही है, टर्मिनेट, स्ट्रेट अवे टर्मिनेट। हमें मम्मा को प्रायोरिटाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तुम लोग को होनी नहीं चाहिए। और मैडम इसमें स्टीरॉइड्स का कोई स्पेसिफिक तरीका होता है देने का, या बस नहीं, वैसे ही देते हैं 12 24 आवर्स अपार्ट? वैसे ही देते हैं, कोई स्पेशल तरीका नहीं है। जी डॉक्टर कुलसुम, आपने जो सवाल पूछा था मेडिसिन का, हाँ अब देखो, मेडिसिन बस आपको पता है इसकी एंडोथील क्या कहते हैं, एंडोथीलिएज इनहिबिटर्स होते हैं अब, और फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं जो सिलाडेनफिल होते हैं। ये इसकी ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव पे ये पेशेंट होती है, एंटी कोगुलेंट्स पे होती है। अब एंटी कोगुलेंट वो कौन सी ले रही है आपने ये देखना है, वॉरफेरिन है तो स्विच के ऑप्शंस आ जाएंगे। एंटी हाइपरटेंसिव अगर वो ARBs एस ले रही है तो आप चेंज करवाओगे, अगर कंटिन्यू करती है तो। ठीक है, प्रेगनेंसी को। बाकी रही बोसेंटान, आपको बस ये पता होना चाहिए कि बोसेंटान इज टेराटोजेनिक फॉर हर बेबी, सो यू विल स्विच टू सिलाडेनफिल और द प्रोस्टासाइक्लिन्स। ठीक है, बेसिकली ये वेदोडाइलेटर्स होते हैं, ये लंग की जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करते हैं ताकि प्रेशर कम हो पेशेंट की पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, इससे ज्यादा तुम लोगों को जानने की ठीक जरूरत है। नहीं है। पूरी प्रेगनेंसी की केयर जो इस स्टेशन में जैनब ने सॉल्व की है ना, और अदर थिंग्स जो मैंने बस इनकॉर्पोरेट की हैं, दैट इज द की। बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। असल चीज है कम्युनिकेशन। पेशेंट विल बी एक्सट्रीमली वरीड एंड यू विल एम्पथाइज हर, एड्रेस हर कंसर्न्स एंड टेल हर अबाउट ईच एंड एवरी रिस्क प्लस पेशेंट सेफ्टी पॉइंट्स। बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। आपकी EBM में इतना ही लिखा हुआ है, यही चीजें बस डिस्कस होनी है इसमें। ठीक है, बाकी जो मैं बताती हूँ, कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, कब से है, कंट्रोल है नहीं है, डॉक्टर को दिखाया था, अभी सिम्टोमेटिक है या नहीं, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री तो नहीं, ये 5 सवाल हैं कार्डियक पेशेंट के, ये लिख के रख, ये पूछ। ठीक हो गया, इसको पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा, छोटे से नोट्स इसके बनेंगे, वो बना के इसको टॉपिक को साइड पे करो, कवर करो, आ सकता है एग्जाम। चलो दूसरी मीटिंग इससे पहले कि डॉक्टर एंड हम पलविशा, मूव करें। हाँ जी।
40% मोर्टेलिटी आपने बताई थी और 80 to 100% भी आपने कुछ बताया था, वो क्या था? एक मिनट रुको, इसको बोल्ड करो। यार जो अबॉर्शन में मोर्टेलिटी है ना, वो तो है 7 to 8 7%। आउट ऑफ 100। ठीक है, बाकी अब जैनब ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है 40% बताकर। मुझे जो याद है ना, 40% मैंने पढ़ा, मैंने भी 40 पढ़ा हुआ है, इसलिए 50 मुझे आउट ऑफ थोड़ी 100, कंफ्यूजन। 50 आउट ऑफ 100 कैन वो लीड टू मोर्टेलिटी। वो डॉक्टर टॉक में तो 56 भी लिखा हुआ है, लेकिन वैसे रेंज जो है ना 40 to 50, 50% 50 लिखा सही हुआ है, है जी। 50 की फिगर याद करो, सही है। ओके। 80 फिर मैंने इसमें कुछ और पढ़ा होगा जो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ना। 50, सही। हाँ और 50। डॉक्टर पलवल, हाँ जो जी, फर्स्ट सिनेरियो था उसके अंदर, वो जो सिनेरियो था जिसके अंदर प्रीवियस थी 2 आवर्स के बाद वो कोलैप्स हुई थी, तो वो पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी था ना, जी डायलेटेड, जी, वो या पेशेंट हाइपरट्रॉफिक था? पेरिपार्डम। देखो, ग्रेविडा 2 पैरा 1, प्रीवियस LSES विद माइटल स्टेनोसिस ऑन लिस्ट फॉर इलेक्टिव LSES। एक तो ये हो गया। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो, ग्रेविडा 2 पैरा 1, abortion 0, 30 years old, known chronic hypertensive for 2 years with history of sudden collapse 2 hours previous, sorry, after previous LSES। उसका जो पिछला ऑपरेशन हुआ था ना, पिछले बच्चे वाला, उसमें वो ऐसे ऐसे कोलैप्स हुई थी 2 घंटे बाद डिलीवरी के। ठीक है, और नॉन क्रोनिक हाइपरटेंसिव थी, और वो डायग्नोज हो गई थी कार्डियोमायोपैथी। तो करंटली शी इज अ नॉन केस ऑफ कार्डियोमायोपैथी, और उसका अब सीजर होगा। तो मैं ये कह रही थी कि जब आपने पूछा कि कार्डियोमायोपैथी की कौन सी टाइप है, तो बेस्ड ऑन दिस हिस्ट्री आपको क्या लग रहा है, पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी? पिछली बार जो उसको हुई थी डिलीवरी के 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को लैप्स हुई थी, और रिस्क फैक्टर भी मौजूद है, पेरिपार्टम। क्रोनिक हाइपरटेंसिव। ठीक है, जी ठीक। तुम लोगों को PPCM से बाहर कोई कार्डियोमायोपैथी आएगी नहीं, डोंट वरी हम्म, अबाउट इट। हम्म। और ठीक है, मुझे इसकी ये समझ लगी है एनेस्थीसिया की, कि हमने जब पेशेंट स्टेबल हो तो फिर हम एपिड्यूरल देते हैं, और जब अनस्टेबल है या मतलब उस तरह फिर जीए देते सपोज हैं, और इमरजेंसी सिर्फ सीजर करना स्पाइनल पड़ उसमें गया। देना है हम। जी, हाँ इमरजेंसी जी। सीजर करना पड़ गया। रियलाइज के स्पेलिंग जी। में और एंड में, स्पाइनल हमने सिर्फ तब देना है जब वो रिगर्जिटेशन। ये रियलाइज के स्पेलिंग अब सही हुए हैं, देखो जरा लड़कियों में रियलाइज के स्पाइनल स्पेलिंग। नहीं देना कभी भी, जो है वो रिगर्जिटेंट में तो देना ही एपिड्यूरल है। रियलाइज के स्पेलिंग चेक करो, सही है ये? हम्म, Z आता है या S आता है? रियलाइज में जो है वो ऐसा आता है, सही है। सही है, चलो ठीक है। कौन कर रहा है केस नंबर 3 जल्दी से? हम्म, मैं। तुमने कर लिया, एनीबडी केस एल्स? तो डॉक्टर पलवशा, वो तो ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से थे। चलो, केस नंबर 4 कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है? नहीं तो फिर आसिया करेगी, जिसने मार्फन सिंड्रोम पढ़ा नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी डॉक्टर पलवशा। चैट में। डॉक्टर अब मैं करूँ, अगर कोई हाँ, और नहीं है तो? ठीक है जैनब, चलो शुरू कर, बिस्मिल्लाह। You are R4 in the antenatal clinic, and you have to see Mrs. Nida, 24-year-old woman who is known case of Marfan syndrome. She is on losartan to control her BP. She is planning for pregnancy. This is simulated patient risk. Take brief history, targeted clinical examination, outline and justify the management plan. Answer the patient or question. Madam, should I start? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैनब है। वालेकुम सलाम। अ, अच्छा, आपका नाम निदा है और 24 साल की हैं, और जी आपको मारपान सिंड्रोम है, और आप जी ब्लड प्रेशर के लिए लोसर्टन ले रही है, जी ऐसा ही है? और जी अब आप प्रेगनेंसी करना चाह रही हैं। जी। अच्छा, निदा कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 2 साल हुए। ओके ओके। अच्छा निदा, ये मुझे बताइए कि जो है वो, मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवालात करना चाहूंगी, हाँ जी। ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये बीमारी जब आपको जो है
इसके बारे में आप बताएंगे इस वक्त इसके साथ आपकी कंडीशन कैसी है, कंट्रोल है, और आप हाँ कैसा जी, फील करती हैं? अभी डॉक्टर साहब कंट्रोल है मेरी, मैं ये दवाई ले रही हूँ लोसार्टान, तो मेरा बीपी तो कंट्रोल रहता है इस पे। ठीक है, इसके अलावा आपको दिल का कोई मसला, सांस लेने में मसला, हड्डी जोड़ों को कोई तकलीफ या आंखों को कोई मसला? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो सारी चीजें ठीक है, कंट्रोल है। बस ये मेरा सिंड्रोम डायग्नोज हुआ तो उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। अभी बस बीपी का मसला था, वो डॉक्टर ने दवाइयां शुरू करा दी, बाकी मैं अपने डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ बाकायदगी से। बस उन्होंने कहा था जब आपने प्रेगनेंसी करनी है तो आप अपनी डॉक्टर के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाके काउंसलिंग के लिए जाएगा, वो आपको सारी चीजें बताएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये अप्रिशिएट करूंगी कि आप प्रेगनेंसी से पहले हमारे पास आई। अच्छा, इसके लिए आप यानी बाकायदगी से अपने डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं? आखिरी बार कब चेक करवाया आपने? डॉक्टर साहब मैंने अभी 1 महीने पहले ही कराया, मैंने उन्हें चेक। अच्छा। अच्छा, देखें, उन्होंने कहा था कि आप प्रेग्नेंट हो सकती है, या उन्होंने आपको हमारे पास भेजा है? डॉक्टर साहब उन्होंने ना मेरा टेस्ट करवाया था, जिसपे उन्होंने कहा था पहले मैं तुम्हारा एक टेस्ट करूंगा, वो लेके जाना डॉक्टर के पास, तो वो तो मैं घर पे भूल आई डॉक्टर। लेकिन ना ईको उन्होंने। करवाया था आपका? जी। आपका ईको करवाया था दिल हाँ का जी, अल्ट्रासाउंड? उन्होंने इको कराया था, उन्होंने कहा था कि वो जो ईको। दिल का वो जो एक वॉल होता है ना, क्या कहते हैं, जो आपका एओर्टा होता है, जो बड़ी वाली जो जी एक जी। ये होती है, उसका देखा हाँ। जाएगा कि कितनी मोटी है वो। तो वो डॉक्टर साहब ठीक थी, 4 से कम, मुझे बस इतना पता है, उन्होंने कहा था 4 से कम हुई तो तुम प्रेगनेंसी कर सकती हो, तो वो 4 से कम ही आई थी डॉक्टर। गुड। अच्छा, जो है वो, इसके अलावा पलवैशा, आपको कोई और बीमारी, जैसे शुगर की, ब्लड प्रेशर की, दमा की, या किसी और किस्म की बीमारी, नहीं किसी और डॉक्टर साहब, बीमारी बस के लिए कोई दवा लेती हो, किसी नहीं, दवा बस से एलर्जी? सीजनल फ्लू रहता है मुझे, बाकी तो मुझे कोई चीज नहीं, एलर्जी कभी भी कोई एक चीज सर्जरी नहीं है। हुई हो, दिल की कोई सर्जरी हुई हो आपकी कभी? नहीं। इसके अलावा कोई सर्जरी हुई हो? नहीं डॉक्टर, कोई सर्जरी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मैडम पलवैशा, बहुत शुक्रिया आपकी आपकी मालूमात का। अच्छा, जैसे कि पलवैशा, आप चाह रही हैं कि आप हमल के दें, जी। आपको जैसे कि मारफान सिंड्रोम है। अच्छा, ये मैं आपको पैदाइशी पता चल गया था, ये कब आपको पता चला था? क्योंकि ये तो पैदाइशी बीमारी होती है ना, हाँ तो जी आपको कब पता चला था? डॉक्टर साहब, बस जब देखा कि आंखों में भी मसला हो रहा है, सही से नजर नहीं आ रहा, और जोड़ों में जो है अजीब जोड़, हम्म। देखे मेरी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, फिंगर्स मेरी हम्म। लंबी, बचपन में तो सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर बाद में जब ये दिल का मसला शुरू हुआ तो फिर दिखाया तो ये तो बीमारी निकली। खानदान में किस किस को है आपके? डॉक्टर साहब, मेरी अब्बू की तरफ ये बीमारी है, मेरी अम्मी को तो ये नहीं है। ओके ओके। हाँ जी। अच्छा। अच्छा पलवैया, देखें, इसमें जो है वो आपके डॉक्टर ने जैसे कि बताया था एओर्टा का, क्योंकि आप पढ़े लिखे, इसलिए मुझे आपको समझाना भी थोड़ा आसान होगा। एओर्टा वो होता है जो हमारे जिस्म की सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है, जो कि हमारे दिल से खून लेकर हमारे जिस्म के पूरे पार्ट्स में जो है ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, कभी इस तरह होता है कि जो आपकी बीमारी है मारफान सिंड्रोम, उसमें ये होता है कि ये जो एओर्टा होता है, ये इसकी जो रूट होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, तो उसका खुदा ना खास्ता रप्चर के चांसेस होते हैं। आप मेरी अच्छा, बात समझ रही हैं? और ये चांसेस उस वक्त ज्यादा हो जाते हैं जब माँ हमल से होती है, यानी प्रेगनेंसी में ये सूरत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब डॉक्टर साहब चूंकि, फिर क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखें, जैसे कि आपको इसकी हम मोटाई चेक करते हैं ना, अगर जी। 4.5 यानी 4.5 से ज्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में तो माँ की जान को खुदा ना खास्ता 25% तक खतरा होता है। लेकिन चूंकि आपके 4%, 4 से कम है, तो बहुत कम, यानी कि ना होने के बराबर, यानी कि 1% चांसेस है आपके। ठीक। तो ऐसे में आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले जो है हम आपके शौहर को कभी टेस्ट करवाएंगे कि उन्होंने अभी तक टेस्ट करवाया है कोई? नहीं, उनके तो नहीं हुए। अच्छा, उनको जो है हम जेनेटिक्स के पास भेजेंगे, उनका जो है टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी मौरूसी बीमारी है, अगर दोनों पार्टनर को होती है तो 100% चांसेस होते हैं कि आपके बच्चों को भी ये बीमारी हो। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ठीक
आती है, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो इसी सूरत में आपके बच्चों को 50% जो है वो ये बीमारी मुंतकिल होने के चांसेस है। आप अच्छा। मेरी बात समझ रही हैं? अच्छा। अच्छा, जी। देखिए, अभी जैसे कि आपका जो है वो इको नॉर्मल आया है, तो हम आपके जो है फॉलिक एसिड की दवाइयाँ शुरू करेंगे। ठीक है। इसके लिए आपकी वैक्सीनेशन देखेंगे कि रुबेला के लिए आपकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, और आपके डॉक्टर के मशवरे से आपकी ये जो दवा आप ले रही हैं ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए, लोसर्टन, ये आप चेंज करेंगी, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं होगी। हमल में हम इसकी जगह दूसरी दवाइयाँ शुरू करेंगे। अच्छा। ठीक है। सही अच्छा, है। जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो अ, वैसे अगर पलवैया इसी सूरत में माँ अगर प्रेग्नेंट होती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि एक स्मूथ प्रेगनेंसी गुजरती है। अ, लेकिन कुछ चांसेस बच्चे को और माँ को हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये बढ़ा हुआ होता तो इसी सूरत में माँ को ये चीजें हो सकती थी। और बच्चे में ये है कि अक्सर बच्चों में ये होता है कि बच्चे को खुराक अगर कम जा रही हो, ब्लड सप्लाई कम होती है, तो बच्चा खुदा न खासा छोटा हो सकता है, वक्त से अच्छा। पेंदे हो सकता है। तो ऐसे में हम बच्चे के भी टेस्ट करवाते रहेंगे। आपने मैं और मेरी डॉक्टरों की टीम, जिसमें दिल के डॉक्टर, बेहोशी के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर और उसके अलावा सीनियर मिडवाइफ होंगी, वो आपकी केयर करेंगी। आपने हमारे पास रेगुलर चेकअप करवाना है। हम हर उसमें हमल के में आपके बाकायदगी से इको के, यानी कि इको भी आपका करवाएंगे। बच्चों की शुरू के महीने में बच्चे के लिए डेटिंग स्कैन जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं, वो टेस्ट करवाएंगे। इसके अलावा जो है बच्चे का भी इको करवाया जाएगा, और बच्चे की बनावट के लिए भी जो है 18 से 21 हफ्ते में टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जो है बच्चे प्रेगनेंसी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 24 से 26 हफ्ते के बाद हम रेगुलर बच्चे की ग्रोथ को चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। पलवैया, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने जो है अपने आप को बस बहुत ज्यादा जो है वो रेगुलर हमारे पास चेकअप करवाना है, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आप मोबाइल यानी कि चलते फिरते रहो, बहुत ज्यादा बेड रेस्ट ना करें। दूसरा ये है कि क्योंकि ऐसी सूरत में माँ के चांसेस होते हैं कि खून मंजर होने के, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम जो है वो अ, आपकी जो है डिलीवरी पूरी मुद्दत पे ही करेंगे। आप जो है कंसल्टेंट यूनिट में जो है दाखिल होंगी। वहाँ सही। हमारे डॉक्टर की टीम आपको देखेंगे बच्चे, और आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर वन टू वन केयर यानी दी जाएगी आपको, और आपके बच्चे को मुकम्मल तौर पर बच्चे की दिल की पट्टी मुसलसल की जाएगी। और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी में हम वो दवाइयाँ यानी कि डिलीवरी के दौरान वो दवाइयाँ करेंगे जो आपके दिल के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, जैसे कि एर्गोमेट्रिन। उसके सही। बाद जो है अब आपको और आपके बच्चे को देखा जाएगा। आपको वक्फे के लिए मैं जो है तरीके बताऊंगी कि कौन कौन से तरीके, उसके लिए हम आपको कंट्रासेप्शन क्लिनिक में भेज देंगे। इसके अलावा आप अपने बच्चे को दूध पिला सकेंगी। और कोई आप सवाल आप पूछना डॉक्टर चाहते हैं? मेरी डिलीवरी कैसे करवाएंगी आप? बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे ना, हमारी तरफ मौसम भी बहुत खराब है। जो है वो अगर हम्म, इसमें जो है ये, जैसे कि मैंने आपको आपने बताया कि जी। आयोटिक 4 से हम्म। कम है, जी। तो ऐसी सूरत में जो है हम टाइम पे लेके जा सकते हैं। जी। आपके पास दोनों ऑप्शन है, नॉर्मल डिलीवरी के भी, ऑपरेशन के भी। सही। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें और क्या क्या एहतियातें हम करेंगे उस दौरान आपके लिए। सही। डॉक्टर साहब अच्छा, आपने डिलीवरी बताया। के बाद जो है ना जी। आपकी जी। जो अच्छा, चूंकि देखिए अगर आपका ऑपरेशन का रिस्क हुआ तो ऐसी सूरत में ये है कि हम बेहोशी वाले डॉक्टर को 34 से 36 हफ्ते पे जरूर दिखाएंगे, क्योंकि जो इस बीमारी के साथ लोग होते हैं उनकी जो हड्डी का मसला हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आपको खुदा ना खासा जब बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए जो है वो हम उन डॉक्टर से भी मशवरा करेंगे, और आपके जो है दिल, आंखों के और इसके टेस्ट भी करवाए जाएंगे अ, दौरान हमल। इसके अलावा और कुछ आप पूछना चाहती हो? नहीं, योर टाइम इज अप देन। अच्छा। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, आपने कहा था कि 50% जो है चांसेस हैं कि मेरे बच्चे में ये जाएगा। मेरे जी जी। शोहर वैसे ठीक हैं, बिल्कुल उनको कोई मसला है नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन कैसे पता जी चलेगा जी, डॉक्टर कि इस बच्चे में ये बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी?
देखिए, अगर आपके शौहर को ये बीमारी आप बता रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम जब हमल के शुरू के महीनों में जो होता है, बच्चे के ओलनाल से एक टेस्ट करते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में सीवीएस कहते हैं। उसमें हम पता चल जाता है हमें कि आया इस बच्चे में जो है वो ये बीमारी है या नहीं। और दूसरा, इससे पहले अगर आप एडवांस तरीका जिसको हम पीजीटी कहते हैं, यानी कि हमल से ही पहले, यानी जी कि उसमें लेबोरेटरी में आपके और आपके बच्चे शौहर के जिस्म में मिलाकर और एक वो टेस्ट किया जाता है उसको। जिन जी बच्चों में मार्फन सिंड्रोम जिन एम्ब्रियो या जिन में अ, ये मार्फन सिंड्रोम के चांसेस होते हैं, उनको जो है वो और उनमें नहीं होते, तो ऐसी ऐसा एम्ब्रियो जिसमें नहीं होते चांसेस, तो फिर वो माँ के यूट्रस में जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि एक सेफ प्रेगनेंसी हो। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू। चले जैनब, आपने बहुत अच्छा किया, आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। आपने वही सारे क्वेश्चंस किए, पेशेंट को ये मसला कब से है, क्या उसको सिम्टम्स थे, और ये दवाई जो है उसकी कंट्रोल कर रही है सारी चीजें। और अभी उसके टेस्ट हुए हैं नहीं, उसको फिजिशियन उसने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कब दिखाया, फिजिशियन को कब दिखाया, एंड उसने फिर एको का बता दिया आपको, तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये लो रिस्क प्रेगनेंसी है। जैनब, मुझे एक सवाल करना है तुमसे। ये WHO की कौन सी क्लास है कार्डियक डिजीज की? मार्फन सिंड्रोम 3 या 4 में आती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है डॉक्टर। You have to know the modified WHO classification of cardiac diseases. जी मैं पढ़ती आपकी हूँ आज तक। आपकी जी जी। ईबीएम में, न्यू ईबीएम में अब ये टेबल ऐड हो चुका है। ये आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इन फ्यूचर एग्जाम्स। ठीक है? ठीक है डॉक्टर, पहले ये तो ये पढ़ती मैं आज। एमसीक्यूज में आना शुरू होगा, और ये इसमें भी आएगा, आपके टॉक्स में भी एक टेबल है। मैं ओके। दिखा देती हूँ, रुको। ये जरूर करना है, ये मैंने कल ही तुम लोगों का देखा है। मैडम मैं जी अभी जी। मेरे पास तो ईवीएम नहीं है, और फिर उसको खोलने में अभी अगर डाउनलोड करते हैं तो खोलने में भी तो टाइम लगता है। अभी टेबल शेयर कर दें। जैनब, ये तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नो डॉक्टर, वही केस वाली स्क्रीन है। यार स्क्रीन ये चेंज कैसे होती है स्क्रीन? हाँ, कुछ ना आता मुझे। रुको जरा दिखाती हूँ। अब चेंज हो गई, आपकी पिक्चर आ रही है। नहीं नहीं, स्क्रीन अब अब आएगी। शेयर हो रही है। जी हो जी, रही? अब शेयर हो रही ठीक है। है। जी जी, अब देखो, ये हो रही मैंने है। हाँ अब मैंने चेंज हो हाईलाइट गई। किया है, मैं यही हाईलाइटेड पिक्चर भेज दूंगी तुम लोग को ना। देखो, कल मैंने सारे जी डिसऑर्डर जो हमने डिस्कस किए ना, मैंने सारे किए हैं इसमें। WHO 2 to 3 वाली में आपकी माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, मॉडरेट एओर्टिक स्टेनोसिस, ये आ जाती हैं। और मार्फन जो है विदाउट एओर्टिक डायलिटेशन, अगर डायलेट नहीं हुई तो इसमें आएगी। जैसे 4 mm से कम है अगर, जो मैंने आपको बताई, तो वो जी इसमें आएगी, ठीक है ना, जी। 2 to 3 में। अच्छा, ओके। अ, वैसे और तो मॉडरेट वाली जो 3 में आएगी, नहीं, इसमें ये 3 में कह रहे आएगी। हैं ना। जी हाँ जी, जी। मॉडरेट अगर वाली। तो डायलेट नहीं है ना, तो ये 2 to 3 में ऐसे कर रहे हैं वो, कि डायलेट नहीं है तो 2 हो गया, और अगर डायलेट है तो फिर कितनी डायलेट है, 40 to 45 mm, जिसका मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर से 4.5, 4.5 सेंटीमीटर तक हुई डायलेट, तो 3 में आ जाएगी। आपकी पेशेंट की 4 है तो ये 3 में आ जाएगी, ठीक है। ओके ओके। और इसके अलावा आपकी जो प्रीवियस पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी विदाउट एनी रेजिडुअल लेफ्ट वेंट्रिकुलर इम्पेयरमेंट वाली पेशेंट क्लास 3 में आती है। अगर किसी को रेजिडुअल लेफ्ट वेंट्रिकुलर इम्पेयरमेंट है तो वो क्लास 4 में आती है, और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन क्लास 4 में आती है। यही जो आपके सिनेरियोज आने हैं ना, बस ये इनकी क्लासेस आपको पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा ये टेबल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। बाकी बस ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रीटेड डिफेक्ट्स है ना, अब आई हैव जस्ट 9 minutes टू कंप्लीट दिस डिस्कशन। ये ट्रीटेड डिफेक्ट्स जितने भी है ना, बिनाइन बिनाइन सी चीजें, ये 1 और 2 में आती हैं। बट तुम लोगों को ये पता होना चाहिए जो तुम्हारा आना है, ठीक है। और इसके बाद अब ये इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिस क्लास में वो फॉल करती है ना डिजीज, उसकी ऑलरेडी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हुई है। अब आपकी जो 2 to 3 वाली है, देयर इज इंटरमीडिएट इंक्रीज रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉडरेट टू सीवियर इंक्रीज इन मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी अलग दोनों चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। रिस्क हो गया, फिर कार्डियक मैटरनल कार्डियक इवेंट,
रेट मतलब कि डिटीरियोरेट कितनी परसेंट हो सकती है, काउंसलिंग आप करेंगे, हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी, और बाई मंथली मतलब के बाई मंथली का मतलब हो गया मंथ में 2 बार आएगी, तो फोर्टनाइटली हो गया। लोकेशन ऑफ जी डिलीवरी रेफर्ड हॉस्पिटल। अब 3 और 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटर्नल मोर्टेलिटी एज वेल एज मोर्बिडिटी जो कि सीवियर है। कार्डिक इवेंट का रिस्क इतना है, आपको अगर कुछ समझना है ओवरऑल रिस्क डिटीरियोरेशन का आप ये बता सकती हैं, 25% आप बता सकती हैं क्लास 3 में। यस, एक्सपर्ट काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, आपने एक्सपर्ट डॉक्टर का नाम लेना है इसमें। एक्सपर्ट सेंटर फॉर प्रेगनेंसी एंड कार्डिक डिजीज मंथली और बाई मंथली, ठीक है, मिनिमल फॉलोअप जो है, और एक्सपर्ट सेंटर फॉर प्रेगनेंसी एंड कार्डिक डिजीज, ठीक है। और ये आपकी जो 4 है इसमें देखो कार्डिक इवेंट 40 to 100% हो सकते हैं, उसको कोई भी मसला जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाएंगी 100% तक रिस्क। 4 में आपकी प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इफ प्रेगनेंसी अकर्स टर्मिनेशन शुड बी डिस्कस्ड, ये नहीं है कि इज रिकमेंडेड, शुड बी डिस्कस्ड, प्रायोरिटी इसी को देनी चाहिए। लेकिन फिर अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर आपकी केयर सारी एक्सपर्ट पे चली जाएगी, CLU में चली जाएगी विद ICU फैसिलिटी, ठीक है। ये टेबल तुम लोगों ने रटना है, ये जरूर पता होना चाहिए तुम लोगों को, क्लास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी डॉक्टर, जब इंशाल्लाह ये काउंसलिंग करते करोगी ना तो या स्ट्रक्चर्ड करोगी तो आप सीधा से बोलोगी ना, जबकि मैडम एज माय पेशेंट हैज प्रीवियस डायग्नोज पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी विद द रेजिडुअल लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिफेक्ट, सो दिस फॉल्स अंडर मॉडिफाइड WHO क्लास 4। उधर ही एग्जामिनर ने आपसे इम्प्रेस हो जाना है, आगे तो कोई छोटी मोटी गलती करी भी ना आपने तो वो फोरगो कर देंगी, समझ आई? ओके ओके डॉक्टर, जी जी इंशाल्लाह ये करते हैं। दिस इज द मोस्ट जो है ना वो चेरी ऑन टॉप थिंग फॉर योर स्ट्रक्चर डिस्कशन, ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक कोई क्वेश्चन मार्फन यू। में? अच्छा डॉक्टर, बस, ये जो मार्फन का है यही है ना, दोनों एसपीडी के और LSCS दोनों के हाँ ऑप्शन जी, देते हैं ना दोनों इसमें? करा सकती हैं पेशेंट की कंडीशन पे, और वो एओर्टिक डायलिटेशन पे डिपेंड करेगा, जी क्योंकि जब वो 4 में आ गई ना, अगर एओर्टिक जी डायलिटेशन या डायसेक्शन के उसको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई, फिर तो आप उसको सीजर करेगी, फिर अब आप नहीं कर सकती उसको नॉर्मल डिलीवरी, ठीक जैसे है। इस सिनेरियो में पेशेंट स्टेबल थी और लेस देन 4 थी, तो हाँ इसको जी, हाँ नॉर्मल जी, पे टाल दिया जा सकता है? नॉर्मल की तरफ जाएंगे। प्री प्रेगनेंसी पे आई है ना, तो अभी तो दोनों ऑप्शंस बताओगी। म्यूटेशन का जीन FBN जीन होता है जिसको हम फिब्रिलिन 1 कहते हैं। आप ये जीन ही हमें पता चलता है, जो PGD होती है ना, आप उसको जो जी आपने जी ऑप्शन दिया PGD का बिल्कुल सही दिया, कि अभी आपके पास PGD का ऑप्शन है विद IVF, उसमें हम देख लेते हैं कि ये वाला जीन जिस जीन की वजह से ये बीमारी होती है वो आपके एम्ब्रियो में है, जिस एम्ब्रियो में नहीं होगी वो इम्प्लांट कर दिया जाएगा। बस तुमने ये बताना है, प्री प्रेगनेंसी वाला ही तुम ऑप्शन दोगी जैनब अभी, ठीक है। ओके प्रेगनेंसी वाला CVS को भूल जाओ, तुम PGD विद IVF विद जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। प्री प्रेगनेंसी पे ओके ही ये आएगी तुम्हारे पास, ऐसे ही आएगा ये सिनेरियो, ओके ओके। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। एंड रेस्ट ऑफ यू गर्ल्स प्लीज रीड दिस टॉपिक, ऑल ऑफ देम। अब आपका कार्डियक डिजीज कवर हो गया है पूरा, कुछ भी नहीं रहा। बाकी रही हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट, वो वही वाली ट्रीटमेंट है जो PPCM में आपने हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट की है, हार्ट फेलियर की ओवरऑल यही ट्रीटमेंट है। आपके पास लीजन्स आएंगे, उनकी मैनेजमेंट उनकी, बस हाँ, हर लीजन की जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो आपको जरूर पढ़नी है एक साइड पे। अगर किसी बच्ची ने लिखी हुई है तो प्लीज बाकी सबके साथ शेयर कर दो, सदका जारिया, सबको ढूंढनी ना पड़े ना, अब टाइम कम है, अगर किसी ने कर लिया है तो वो शेयर कर दो। जैनब मैं आपको ही, आपकी तरफ ही इशारा है मेरा, ठीक है। नहीं वो मैं यही दीदी, मैं जो है वो जो मेरे पास होंगी मैं इंशाल्लाह वो कर देती हूँ हाँ, सेंड। आप वो कर दीजिए, क्योंकि आपने कंफर्म तो मुझे मुझे सारी हो गया। फिगर्स बिल्कुल सही बताई हैं, आपने 3 केस प्रेजेंट किए हैं, आपने एग्जैक्ट वही बताई हैं सारी चले लिटरेचर मैं वाली, इंशाल्लाह। ठीक है, शेयर कर दें। जी चलें, किसी का ओके। कोई क्वेश्चन? वी हैव रिमेनिंग 5 मिनट्स, वी कैन डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट तो मंडे को थायराइड है ना, आई गेस। नेक्स्ट मंडे को थायराइड है, ठीक है। लेकिन आप प्लीज थोड़ी सी वो करें आप कोशिश, ग्रुप खोल के पिन मैसेज पे देखें आप टॉपिक, मेरे ख्याल से थायराइड है, कंफर्म करना, मेरी बातों पे मत जाना, मैं नहीं भी वो उस, देखा हुआ था मैंने कहा बीच में कहीं आपने वो नहीं कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, का भी कहा था, वो उसका ब्रेस्ट कैंसर का कहा था ना, तो मैंने वो अलग से होगी क्लास, मैं डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं खुद बताऊंगी आपको, ठीक है।
किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, उसी की रिपोर्ट। डॉक्टर परवैशा, मैं आपको स्ट्रक्चर डिस्कशन कार्डियक डिजीजेस का वॉल्वुलर का भेजूंगी, वो आप प्लीज उसको एड्रेस कर देखो दीजिएगा। आसिया, मेरी बात सुनो। बिल्कुल एक नॉर्मल सी सिंपल सी बात है, अगर आपको समझ आ जाए। ये जो है ना, मेरा टाइम डेडिकेटेड होता है तुम लोगों के लिए, तो इसमें तुम प्रेजेंट करोगे तो मैं पूरी कंसंट्रेशन से, और ये तुम लोगों का डेडिकेटेड टाइम है, मैं सुन रही होती। वो जो आप स्ट्रक्चर्ड अलग से भेजोगे ना, आई कैन नॉट गारंटी मैं कभी सुनूंगी कभी नहीं सुनूंगी। दिस इज द टाइम, पढ़ के आओ और इधर प्रेजेंट करो। बस मैंने मेटालिक वगैरह पढ़ा हुआ था, वॉल्वुलर लीजन्स, वो आपने सिनेरियो दिया ही नहीं। कल वो हो चुका है, सारी आपकी हो चुकी हैं, आप कल भी प्रेजेंट कर चुकी हैं और आपने आज भी किया है। ये अलग बात है कि मैंने कल कहा था आप ये टॉपिक पढ़ के आओ, लेकिन आप लोग पढ़ के ही नहीं आए। आज अच्छा पढ़ा था, आज आप अगर करवाती ना तो और अच्छा अच्छा हो जाता। आज मैंने करवा लिए जो 3 सिनेरियोज मैंने करवाने थे चंदा, अब आप आपस में प्रैक्टिस करें। मैं आपको भेज दूंगी, अब आपकी मर्जी, आप कमेंट करें कि नहीं करें, जब टाइम हो तो कर दीजिएगा। जैनब, आप ये ग्रुप में भेजें। चलिए ठीक है डॉक्टर, मैं ठीक है। भेज देती हूँ। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवैशा, ये आसान हो गया। आज हमने पढ़ा हुआ था तो चीजें समझ आ रही थी, मार्फन और पुल्मोनरी हाइपरटेंशन की। चलो ठीक है, शुक्र है तुम लोग को समझ आ गई। थैंक यू बस सो कार्डियक मच। थैंक यू डिजीज सो मच। यही है, इसको ही मुश्किल अच्छे से टॉपिक था, पढ़ के। आपने आसान कर दिया। थैंक यू सो मच। चलो कोई मसला ही नहीं है। ओके जी। ये वाली टेबल भी डॉक्टर आप प्लीज शेयर कीजिएगा, जो भी आपने क्या WHO वाली की क्या चीज? डॉक्टर है। परवैशा, एक और बात पूछनी है। हाँ, एक मिनट। डॉक्टर परवैशा, हम्म। ये जो नई ईबीएम आई है, ये डिफरेंट तो नहीं है ना? मतलब अभी तो आप तो ये पढ़ना, मतलब देखने में तो खौफ आएगा अगर इसको खोलेंगे तो। बेहतर है ना इसको ना ही खोलें अभी। मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ कार्डियक डिजीज के लिए खोला था ये, और उस पे मुझे ये टेबल दिख गया, जो मैंने वैसे भी तुम लोगों से टॉग आर्टिकल से शेयर करना था, लेकिन अब तुम्हारी बुक में ही आ गया है तो अच्छी बात है कि देख लो, कोई चीज अगर न्यू मिल जाती है। वैसे न्यू नहीं है, सारी गाइडलाइंस वाली बातें ही आपकी नई किताब में है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी वालों को न्यू बुक पढ़नी है। हम्म। जी जैनब, आप कुछ बोल रही थी? जी जी, बस मैं इसी टेबल का कह रही थी कि डॉक्टर ये हाँ, आप ये सेंड कर टेबल तो, दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, ये टेबल तो मैं अभी भेज रही हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, ओके, अल्लाह ओके। हाफिज।